Assalamu alaikum. Students, hope so you are fine. We have started chapter number 2 and today we are going to continue exercise 2.3. आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी होप सो जितने क्वेश्चन हो जाते हैं उसको कवर करने की कोशिश करते हैं. एज यू नो दैट चैप्टर 2 हमारे पास था थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हमने रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिस्कस किया था. क्यूब रूट्स भी हमने फाइंड आउट की थी, उनके वेरिफिकेशन प्रूफ किए थे. एक्सरसाइज 2.3 दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब ये देखो हमारे पास सम ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है s इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू p इज इक्वल टू सी बाई ए. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ अगर हमें रूट्स गिवन हो तो हमने उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, x² माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0. नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1. दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 इज without solving find the sum and the product of the roots of the following given quadratic equation. That are too much easy question, simple है. सबसे पहले फर्स्ट वन पार्ट मैं इसका आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ. सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करना है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट वी हैव टू फाइंड आउट दिस. ठीक है, द फर्स्ट वन पार्ट हियर इट इज x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0. नाउ लुक हियर इन दिस क्वेश्चन here a is equal to 1, b is equal to, देखो a हमारे पास फर्स्ट वन वैल्यू है, b सेकेंड वन वैल्यू दैट इज -5 एंड c is equal to 3. So how to find the sum of the roots and the product of root? As I have written the formula in the beginning, sum of the roots is equal to minus b by a. So minus value of b is -5 divided by a is 1. So the answer is minus plus, the answer is 5. Product of root is equal to c by a, which is equal to 3 by putting the value in it and the value of a is 1. So the product of root is equal to 3 आ जाएगा हमारे पास. ठीक है, so this is the answer how to find the sum and the product of roots. ये तो था बहुत ही easy. That is the first one part which I have solved it for you. Fourth and fifth part इसका seems to be a little bit difficult, so I am going to solve the fourth one part. Second and third is easy as so much. So the fourth one part is a plus b into x² minus ax plus b equal to 0. Now look here in this question, here the value of a is a plus b, the value of b is equal to minus a, the value of c is equal to b है हमारे पास. Again by using the same formula that is minus b by a, b क्या है हमारे पास, minus into minus a divided by value of a is a plus b. माइनस प्लस हो जाएगा, a over a plus b is the sum of root. Clear that? Now to find the product of root, p is equal to c by a. So what's the value of c? Here you can see the value of c is b divided by a is equal to a plus b. That's our answer. So students बहुत carefully value note down करनी है, because in this question a plus b variables हमें given है, तो इसी तरह हमें फार्मूला में पुट करना difficult ना हो, mix up ना हो जाए. So be careful. Now I am going to solve the fifth one part that seems to be a little bit difficult for the students, but it's easy. While practicing, no anything is difficult for you. So plus m plus n into x plus n minus l equal to 0. Here in this question, a is equal to l plus m. Value of b हमारे पास क्या होगी students, m plus n, and the value of c is equal to n minus l. As you know that sum of the roots is equal to minus b by a. So minus into b क्या है हमारे पास वैल्यू, m plus n divided by a क्या है, that is l plus n. So we will write as it is minus m plus n over l plus m. That's our answer. While solving the product of roots, that will be equal to c by a. So value of c here it is n minus l and the value of a is l plus m. That's our answer. Hope so बहुत अच्छी तरह आपको समझ आ गया होगा. Now moving towards question number 2. जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if the sum of the roots of the equation is equal to 0 is twice the product of the roots. अब देखो हमारे पास, मैंने ऑलरेडी यहाँ आपकी आसानी के लिए लिख दी. इक्वेशन क्या बनेगी, गिवन कंडीशन हमें क्या कह रहे हैं कि सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट.
ठीक है, जब हमने इनका सम ऑफ रूट फाइंड कर लेना, प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना है, उसके बाद हमने ये गिवन कंडीशन अप्लाई कर देनी है। सेम फॉर सेकेंड पार्ट, तो फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों हमारे पास सेम मेथड से होंगे। आई एम सॉल्विंग सेकेंड वन पार्ट फॉर यू, इट सीम्स टू बी अ लिटल बिट सो दैट यहाँ पे बी की वैल्यू ज़रा ज़्यादा है, तो मैं फिर आपके लिए सेकेंड पार्ट सॉल्व कर देती हूँ। फाइंड द क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, सेकेंड वन पार्ट में सॉल्व कर रही हूँ। क्यों सॉल्व कर रही हूँ? एज आई टोल्ड यू द रीज़न। सो एक्स स्क्वायर प्लस व्हाट्स द वैल्यू इज गिवन 3k माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5k इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले ए बी और सी हमारे पास क्या है। ठीक है, सो हेयर वी कैन से दैट हेयर value of a is equal to 1, value of b is equal to 3k minus 7, value of c is equal to 5k। ठीक हो गया। sum of roots as you know that minus b by a minus into 3k minus 7 divided by value of 1 is 1। तो हमारे पास एक ही 1 है हमारे पास, क्या कर लेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 3k माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट c by a सॉरी, तो हमारे पास c की वैल्यू क्या है, दैट इज ऑफ 5k, a की वैल्यू है हमारे पास 1, सो द आंसर इज 5k। अब हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, हमारी कंडीशन क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिस बहुत कीजिएगा इसकी। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन व्हाट हुई, किससे, मैंने जैसे कि आपको बताया था इसकी गिवन कंडीशन क्या है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू 0 इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक हो गया। अब हमारे पास कितनी आसानी हो जाएगी, अब ऊपर देखो सम क्या है, s दैट इज माइनस 3k प्लस 7 इक्वल टू 3/2 एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास क्या है, 5k हो गया। वैल्यूज़ हमने पुट की, सिंपल इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू माइनस 3k प्लस 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 5k। स्टेप बाय स्टेप मैथ को सॉल्व किया करें, नो नीड टू स्किप द स्टेप्स इन द मिडल। सो 3 5s are 15k and here we will write 2 3s are minus 6k plus 2 7s are 14, माइनस 6k है प्लस 15k इधर आएगा तो माइनस 15k हो जाएगा, प्लस 14 है इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस 14। 15 एंड 6 विल बी इक्वल टू हाउ मच, 21k माइनस 21k माइनस 14, माइनस से माइनस कैंसिल, k विल बी इक्वल टू 14 ओवर 21। अब देखो ये फर्दर किस टेबल पे कट हो रहा है, 7 2s are 14, 7 3s are 21, so the answer of k is 2/3। होप सो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट भी है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फाइंड k है हमारे पास, क्या फाइंड करना है हमने, दैट इज k इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 2 है फर्स्ट पार्ट, सेकेंड है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 6। वही बात हो गई, फिर आप कहोगे कि आप क्वेश्चन नंबर 1 क्यों सॉल्व नहीं कर रही, सेकंड सॉल्व कर रही हैं, तो मैं आपको बारहा बता दूं 1, तो इसमें भी देखो 1 की वैल्यू हमारे पास, c की वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट है। चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर देती हूँ, सेकेंड पार्ट ना समझ आए तो आपने वो भी मुझसे डिस्कस कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट वन पार्ट है, इसमें भी हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब देखो इसमें सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट्स, इस कंडीशन को, नो नीड टू फॉरगेट दिस कंडीशन, इस कंडीशन को याद रखना है अच्छी तरह, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 2 आ रहा है हमारे पास, गिवन इक्वेशन का क्या करेंगे, सम फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और उसके बाद हम इस पर कंडीशन अप्लाई करेंगे। नाउ लुक हियर द वैल्यू इज, क्या थी हमारे पास वैल्यू फर्स्ट वन पार्ट में, 4k स्क्वायर प्लस 3kx माइनस 8 इक्वल टू 0 इज़ 2 है हमारे पास। अब गिवन एक्सप्रेशन सबसे पहले हम लेते हैं, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं।
4k x square plus 3k x minus 8 equal to 0. Here in this question a is equal to 4k, b है हमारे पास 3k और c की वैल्यू है हमारे पास c इज इक्वल टू -8. ठीक है, c हमारे पास है -8. सेम फाइंड करते हैं. सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू -b बाई ए. -b देखो क्या है हमारे पास, -b की वैल्यू है जी 3k divided by a is 4k. k से k cancel. What will be left? -3 by 4. That's too much easy. मैथ की ना जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही बहुत आपको आसान लगेगा, बहुत इजी लगेगा. ठीक है, मज़ा भी आता है मैथ को सॉल्व करने में. c की वैल्यू हमारे पास देखो -8 है, a है हमारे पास 4k. ठीक है, अब देखो 4 2 ज़ा 8, तो हमारे पास क्या बच गया. आप गौर से यहाँ पे वैल्यू लिखते हुए इसको रॉन्ग नहीं कर देना. हमारे पास -2 है ना, ये देखो -2 बाई k. दैट्स द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो गई. ठीक, अच्छा यहाँ पे एक लाइन ऐड कर दो. लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन. ठीक है, रूट्स ऑफ इक्वेशन है हमारे पास. अब तभी सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होता है, दैट इज एज यू नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल होता है, दैट इज अल्फ़ा बीटा के. अब देखो हमारी गिवन कंडीशन क्या थी. अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन we can say sum of the roots, as you look here on the book, sum of the square of the roots of equation is 2. तो हम क्या करते हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन अल्फ़ा स्क्वायर थी प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2. एज यू नो दैट इसका फार्मूला ओपन करें, हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ओपन किया जाए तो आपको पता होगा किसके इक्वल होता है, दैट इज़ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा. तो अब ये था हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को सेपरेट किया जाए तो स्टूडेंट हमारे पास क्या बचता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर. रीअरेंज हो जाती है इक्वेशन -2 अल्फ़ा बीटा. सो वी विल यूज़ अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 2. बाय पुटिंग वैल्यूज़ वी गेट, बाय पुटिंग वैल्यूज़ वी गेट, हमारे पास क्या वैल्यूज़ आएंगी, वही गेट जो हमने प्रीवियसली फाइंड आउट की थी. अल्फ़ा प्लस बीटा देखो हमारे पास क्या चीज़ है, -3 बाई 4 इंटू होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा था हमारे पास -2 बाई k इज इक्वल टू 2. स्क्वायर ओपन करते हैं. 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4 बाई k इज इक्वल टू 2. फर्दर सॉल्व करते हैं, इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, इसका यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 16 k इज़ द एलसीएम, 9 आ जाएगा हमारे पास k प्लस 16 4 सा 64 k आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 2. ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बनेगा हमारे पास 64 प्लस 9. हाँ जी, तो यहाँ पे सॉरी के हमारे पास नहीं आएगा. ठीक है, क्योंकि के तो हमारा एलसीएम में जा रहा है ना. अच्छा इसको देखो, हम इसको फर्दर यूँ भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं. बजाय हम के में कंफ्यूज हों तो हम इस स्टेप को ओमिट करते हैं. ठीक है, इस स्टेप की बजाय हम नेक्स्ट स्टेप में जिसमें हमारे पास के की वैल्यू को सिंप्लीफाई करना ज़्यादा इजी हो जाए, बजाय ये कि हम कॉम्प्लिकेटेड मेथड यूज़ करें. सो वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स अ सिंपल स्टेप ताकि हमारे पास नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस करने के लिए ईजी हो जाए. अब देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, 9 बाई 16 प्लस 4 बाई के इज़ इक्वल टू के. सो 4 बाई के मैंने लिया इज़ इक्वल टू 2 माइनस 9 बाई 16. इसका एलसीएम लेना हमारे पास ज़्यादा ईजी हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू वाइल मूविंग टुवर्ड्स के की वैल्यू को जी इकट्ठा करें, फिर उसमें कन्फ्यूजन हो जाती है सम टाइम. ठीक है, अब हमारे पास 16 है, 2 डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 16 2 ज़ा 32 माइनस 9 ओवर इन इज इक्वल टू 4 बाई के. 32 माइनस 9 इज इक्वल टू 23 बाई 16, 4 बाई के हो जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, के इज इक्वल टू 23 16 4 सा हमारे पास क्या होता है, दैट इज 64. सो दिस इज़ द आंसर ऑफ के. होप सो आपको अच्छी तरह समझ आया होगा क्वेश्चन. ठीक है,
जी. मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज डिफर बाय यूनिटी है. द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस पी माइनस 2 इज इक्वल टू 0 डिफर बाय 2. तो हम इसमें से कोई सा भी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, दोनों सेम है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये 2 कहाँ से आया था. मैं इस चीज़ को भी अगेन एक्सप्लेन करती जाऊँ क्योंकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं सम टाइम, क्योंकि हमें सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन गिवन था, दैट इज इक्वल टू 2 था हमारे पास. ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी की वैल्यू फाइंड करनी है. हियर द फर्स्ट वन पार्ट इज रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस पी स्क्र इक्वल टू 0 डिफर बाय, हमारे पास क्या है, डिफर बाय यूनिटी गिवन है. ठीक है, अब हमने क्या करना है क्वेश्चन नंबर 4 में, एज इट इज़ हमने इसका क्या फाइंड कर लेना है, सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. अब हम इसमें कहेंगे लेट, सेम वैसे ही, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन. तो हमारे पास इक्वेशन क्या है उसमें फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले. हेयर वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -1 और सी है हमारे पास पी स्क्वायर. ठीक है, अब हमने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ एंड सम ऑफ रूट फाइंड करते हैं. अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, अल्फा बीटा होता है हमारे पास सी बाय ए, माइनस बी की अब यहाँ पे देखो वैल्यू है जी बी बाय ए, तो माइनस इंटू -1 बाय 1 और सी की वैल्यू है हमारे पास पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए है हमारे पास 1. तो बुक से देख के मैंने इनके वैल्यूज राइट डाउन कर दी हैं. अगेन इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और पी स्क्वायर आ जाएगा. अब देखो हमारी कंडीशन क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन व्हाट वी विल डू, दे आर सेइंग दैट द रूट्स आर डिफर बाय यूनिटी. यूनिटी का क्या मतलब होता है, दैट इज 1. तो हम क्या कहेंगे, डिफर बाय यूनिटी में अल्फा माइनस बीटा दे हैव गिवन दैट इज इक्वल टू 1. टेकिंग स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर we get अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर. क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, बीटा फार्मूला होता है इक्वल टू 1. लेकिन अब देखो यहाँ पे हमने क्या अप्लाई करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. तो हम क्या कहेंगे, ऐसा तो मैंने कहा था हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हम फार्मूला बजाय ये अप्लाई करनी है, एज वी नो दैट ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab. अब कैसे हो जाएगा, a प्लस बी हमारे पास क्या बना, दैट इज डिफर बाय यूनिटी, हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर था ना. अब a माइनस बी अगर इधर आ जाए हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर, माइनस था उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab है, इधर आके माइनस 4ab हो जाएगा. अब हमने इसको कन्वर्ट कर देना है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू a माइनस बी क्या बनेगा, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर. अब यहाँ से देखो अल्फा माइनस बीटा की क्या वैल्यू है, दैट इज़ 1. और यहाँ पे हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज आल्सो इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा हमारे पास है जी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. ये देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर. तो हम यहाँ पे पी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, तो माइनस 4 पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है हमारे पास. ठीक, प्लस 1 है इधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ठीक है, माइनस 4 पी स्क्वायर जो है. अब हमने क्या करना है फर्दर, 1 माइनस 1 हमारे पास 0 हो गया. शिफ्ट कर देते हैं इक्वेशन को, प्लस 1 था माइनस 1 0 हो गया, माइनस 4 पी स्क्वायर इक्वल टू 0. और वी कैन से दैट 4 पी स्क्वायर इक्वल टू 0 और पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा. ठीक है, तो पी स्क्वायर 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग, द आंसर इज 0. ठीक हो गया, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट. अब स्क्वायर इसका फिनिश करेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, द आंसर इज p इज इक्वल टू 0. क्लियर दैट, होप सो आपको अच्छी तरह समझ आया होगा. मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. तो आज स्टूडेंट मैं सोच रही हूँ हम इस एक्सरसाइज को ही कंप्लीट कर लें. क्वेश्चन नंबर 5,
लेंथी है। नेक्स्ट मेथड इसमें फॉलो करते हैं, फाइंड m if the roots of the equation solving. Let's suppose the first one part, both three parts are given and these three parts are as it is. तो मैं इसका लेने लगी हूँ फर्स्ट वन पार्ट, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द रिलेशन। किस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं? 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 4। अच्छा, जो चीज़ ना समझ आए ना फर्दर भी आप इसमें से देख सकते हो। ये देखो, अगर इस तरह का डिफर बाय यूनिटी है, गिवन नंबर है, तो आप इस एग्जांपल को अच्छी तरह फॉलो कर लो। डी पार्ट से रूट सेटिस्फाइड रिलेशन, तो क्वेश्चन नंबर 5 इससे रिलेट कर रहा है, ठीक है। फर्दर आप एग्जाम्पल्स को भी अच्छी तरह गो थ्रू कर लिया करो। अब मैं इसी एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 का नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वन पार्ट मैं इसको अगेन यहाँ नेक्स्ट पेज पे राइट डाउन कर देती हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इक्वल टू 0। फॉलोइंग द एग्जाम्पल, तो हम क्या कहेंगे, लेट इफ अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। रूट्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन क्या है हमारे पास वही, तो हम क्या करते हैं, इसमें से अल्फ़ा बीटा फाइंड कर लेते हैं, माइनस बी बाई ए एंड अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बाई। अब देखो यहाँ पे ए बी तो लिखा नहीं, ए इज इक्वल टू 1, बी है हमारे पास माइनस 7, सी है हमारे पास 3m माइनस 5। तो माइनस बी बाई ए, देखो माइनस बी की वैल्यू है माइनस 7, ए की वैल्यू है 1, तो ये प्लस हो जाएगा। सी बाई ए 3m माइनस 5 बाई 1, तो हमारे पास क्या आएगा, 3m माइनस 5 हो गया। सिंस व्हाट्स द रिलेशन इट इज़ गिवन, दे सेटिस्फाई द रूट्स ऑफ द रिलेशन। It is given 3 alpha plus 2 beta equal to 4. That relation is given in a question. Don't be confused. हम क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ बीटा। अब हम वैल्यू ऑफ बीटा की पुट कर देते हैं। एज यू नो दैट अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 7 आया था ना, तो यहाँ से इस इक्वेशन से बना सकते हैं हम। अब देखो गौर से, बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 7 माइनस अल्फा के। अब हम पुट कर देते हैं इस अपने रिलेशन में, ठीक है। सो 3 अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू क्या थी, 7 माइनस अल्फा, 7 माइनस अल्फा इक्वल टू 4 हो गया। अब देखते होता क्या है, 3 अल्फा प्लस 2 7 14 माइनस 2 अल्फा इक्वल टू 4। 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा, अल्फा बच जाएगा, प्लस 14 इज इक्वल टू 4, अल्फा इज इक्वल टू 4 माइनस 14 कितना हो जाएगा, माइनस 10। दैट्स आंसर ऑफ अल्फा। होप सो यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो, मैं बार बार कह रही हूँ, डोंट फॉरगेट टू कमेंट मी इन अ कमेंट विंडो। आपने मैसेज कर देना है कोई चीज़ अगर कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही हो तो। अब ये थी हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू। अब हम फाइंड कर लेते हैं बीटा की वैल्यू, ठीक है। इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन इक्वेशन 1। अब बीटा था 7 माइनस अल्फ़ा, 7 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू है माइनस 10, तो बीटा क्या आया हमारे पास, 7 प्लस 10 दैट इज़ इक्वल टू 17। अब हमारे पास था दे सेटिस्फाई द रिलेशन। कौन से रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही थी, द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन। अब हमने अल्फ़ा फाइंड कर लिया, बीटा फाइंड कर लिया, असल में हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m की कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे, एज वी नो दैट अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है, 3m माइनस 5। अल्फ़ा की वैल्यू माइनस 10, बीटा की वैल्यू 17 इज इक्वल टू 3m माइनस 5। 10 इंटू 17 दैट विल बी इक्वल टू माइनस 173m माइनस 5। माइनस 5 है उधर जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा, माइनस 170 इक्वल टू 3m। और माइनस 170 प्लस 5 माइनस 165 डिवाइडेड बाय m, सॉरी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे m की बजाय स्पीडली सॉल्व करते हुए ना सम टाइम इंसान वैल्यू ही रॉन्ग लिख देता है, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। माइनस 165 बाई 3 इज़ इक्वल टू m आ जाएगा हमारे पास, और m इज़ इक्वल टू डिवाइड करेंगे, दैट इज़ 3 5 15, 3 5 15। m की वैल्यू हमारे पास क्या आई, m इज़ इक्वल टू माइनस 55। डन। होप सो अच्छी तरह समझ आया होगा। दैट इज़ आवर आंसर। मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट
क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज? जी, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास इस एक्सरसाइज का। फाइंड m if the sum and the product of the roots of the following equation is equal to a given number lambda। अब lambda हमारे पास ये दो क्वेश्चंस गिवन है और सेम इसमें हमने एग्जाम्पल को फॉलो करना है, दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 29। लेते हैं इसका कोई भी फर्स्ट वन पार्ट या सेकेंड। लेट सपोज आई एम सॉल्विंग द फर्स्ट वन पार्ट, आई एम सॉल्विंग फर्स्ट वन पार्ट फॉर यू। नाउ लुक हियर, इन दिस पार्ट हियर द वैल्यूज आर 2m plus 3 into x square plus 7m minus 5 into x plus 3m minus 10 इक्वल टू 0। बहुत इजी क्वेश्चन, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, वीडियो भी बहुत लेंथी हो रही है। लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, लेकिन असल चीज़ क्या है आपको अच्छी तरह समझ आ जाए स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या है? 2m plus 3 into x square plus 7m minus 5 into x plus 3m minus 10 equal to 0। a is equal to 2m plus 3, b क्या है हमारे पास? 7m minus 5, c value of c is 3m minus 10। then अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या है? 7m माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2m प्लस 3 माइनस साइन के साथ, एंड अल्फ़ा बीटा दैट इज c बाई ए। c वैल्यू है हमारे पास 3m माइनस 10, वैल्यू ऑफ a इज 2m प्लस 3 हो गया। हमें गिवन है इवन लेट अल्फ़ा प्लस बीटा, दे आर सेइंग दे आर इक्वल टू अ गिवन नंबर लैम्डा, एंड अल्फ़ा बीटा सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो है इज इक्वल टू अ गिवन नंबर लैम्डा के। अब हम इससे क्या करेंगे? देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दैट इज दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, वी कैन से दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we are making a comparison, that is alpha plus beta minus 7m minus minus plus 5 over 2m plus 3 हो जाएगा, इक्वल टू है हमारे पास 3m minus 10 डिवाइडेड बाई 2m plus 3 हो जाएगा, ठीक है। होप सो यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब देखो फर्दर हमने क्या करना है। डन, 2m plus 3 से कैंसिल कर देते हैं, व्हाट विल बी लेफ्ट? माइनस 7m plus 5 इज इक्वल टू 3m minus 10। माइनस 7m plus 3m इधर जाएगा तो माइनस 3m हो जाएगा, माइनस 10 plus 5 है तो माइनस 5, माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 10m, माइनस से माइनस कैंसिल, m इज इक्वल टू 15 बाई 10, 5 3s are 15, 5 2s are 10, so what's the answer of m? That is equal to 3 by 2। Clear that? That is our answer। Hope so आज की एक्सरसाइज 2.3 आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, जो चीज़ ना समझ आए मैसेज कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।